Okay, so Raghav is present, Komal is present, Parth, Siddhiraj, Sahil. Yes. Okay, good evening, everyone. Hope all of you are doing well. How was your exam? Present, good evening, sir. Good evening. Good evening, fine. Okay. Parth's exam was nice, very good. Arey, I told you, some of you, please send your question paper of mathematics so that we can discuss. But nobody sent me the paper. Please send the paper so that we can discuss at least. It was easy. Komal is saying the paper was easy. Okay. And how was the circle chapter? Because I taught that chapter only. Circle chapter questions. Could you all attempt circles chapters questions? Please reply. Those who had given the exam. Okay, it was easy. Very good. Others, Parth, only Komal is replying. Parth ने तो दिया था ना एग्जाम. What about you, Parth? Yes, sir. How was it? Well, very good. और किसने दिया था एग्जाम? ओनली 6 बच्चे आए हैं टोटल. इतने कम क्यों आ रहे बच्चे? विशाल ज्वाइन किया अभी. 7 हो गए हैं. चलिए. So now we will begin. So there was 15 marks question of circles chapter. Wow, very good. अच्छा, 5 marks. अच्छा. No problem. Only 5 marks question was there. Okay, no issue. So students, now there are 2 chapters remaining. One is areas related to circle, and another one is volume and surface area. So now, if you want any particular chapter to start, then please let me know. Otherwise I will start my own chapter as per my wish. If any one of you want that this chapter should be taken, then please let me know. Please type which chapter you want. Area related to circle or volume and surface area. Your wish. Sahil is telling my wish. Okay, thank you. Anyone else who wish to study some particular chapter? Trigonometry, Are Baba, but trigonometry is done, no? I think it is completed. Ho gaya, yeah. So we will do trigonometry, no problem. But first we'll complete the syllabus and then we'll move to trigonometry, no problem. Yeah, revision, yeah. So first we'll complete the chapter, then we'll move to trigonometry. That we will do, no problem. Okay. So now I'll start areas related to circles because अभी circles complete ही हुआ है तो उससे ही थोड़ा match रहेगा. So we will begin with areas related to circles. Areas related to सर्कल्स. ठीक है. तो देखो, ये जो सर्कल है ना, इसका एरिया, तो हम लोगों को कुछ पुरानी चीजें क्लास 9th में तो इससे रिलेटेड कुछ भी नहीं था. क्लास 8th में था थोड़ा. तो विल बिगिन विद दैट ओनली. ओके. तो क्लास तो सबसे पहले जाते हैं हम लोग सर्कल. तो मैंने आप लोगों को बताया था ये हमारा है सर्कल. ठीक है. तो आपको पता है सर्कल में क्या क्या होते हैं. सेंटर होता है, फिर सेंटर से हम लोग ड्रॉ करते हैं तो रेडियस मिलता है. दिस इज रेडियस.
दिस इज सेंटर, ठीक है ना। यहां से यहां तक के डिस्टेंस को रेडियस बोलते हैं। ये रेडियस ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज रहता है सर्कल में, ठीक है। तो सबसे पहले हमको पता है डायमीटर। तो डायमीटर क्या होता है, कोई बताएगा? डायमीटर का फॉर्मूला क्या होगा? रेडियस 2r। वेरी गुड। तो डायमीटर इज डबल ऑफ रेडियस, तो बेसिकली इट इज 2 into r। वेरी सिंपल। चलो अभी सिद्धिराज आप बताइए, अगर एक सर्कल का रेडियस है 2.5 सेंटीमीटर तो उसका डायमीटर क्या होगा? 5। वेरी गुड। तो दिस इज वेरी सिंपल, ये हम सबको आता है डायमीटर। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एरिया ऑफ सर्कल। अभी ये जो ब्रैकेट लगाते हैं ना, इसको आप लोगों ने ये पढ़ा होगा पॉलिनोमियल्स, उसमें कैसे बोलते हैं? एफ, ये इसको ऑफ बोलते हैं, एफ ऑफ एक्स, पी ऑफ एक्स, ऐसा बोलते हैं, ठीक है। तो ये एरिया ऑफ सर्कल, इसका फॉर्मूला आपको पता है, ये होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। पेरीमीटर क्या होता है सर्कल का? पेरीमीटर ऑफ सर्कल इज 2 पाई आर, ठीक है। यहाँ पे पेरीमीटर के जगह पे सरकमफेरेंस ज्यादा यूज करते हैं, सरकम, ठीक है। चलिए ये लिख लीजिए, तो ये फॉर्मूला जल्दी से। प्लीज राइट डाउन दिस फॉर्मूलाज फास्ट। सॉरी। यस, तो सिंपल सा चीज है, ये तो पता ही है हम लोगों को, सरकमफेरेंस एंड पेरीमीटर, ठीक है। ये तो हो गया सर्कल, ठीक है। अभी हम लोग मूव करते हैं, इरेजर किधर गया? ठीक है, ये तो सर्कल था। अभी हम लोग को पता है सर्कल के बाद अगला चीज जो आता है वो है सेमी सर्कल। सेमी सर्कल, ठीक है ना। आप लोग घर पे चपाती खाते हो, उस कभी कभी क्या बोलते हैं हम लोग, आधी चपाती दो मम्मी। तो आधी जो चपाती मिलती है वो मोस्टली क्या होता है? सेमी सर्कुलर रहता है। तो ये हो गया सेमी सर्कल। तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या होता है? ये होता है, एकदम सिंपल है, सर्कल का पाई आर स्क्वायर होता है, तो इसका अरे हाफ पाई आर स्क्वायर होता है, सर्कल का आधा, हाफ इंटू सर्कल का एरिया, हाफ पाई आर स्क्वायर, करेक्ट। या अभी ये तो हो गया सेमी सर्कल का एरिया। अभी सेमी सर्कल का पेरीमीटर होगा, पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल। अच्छा, अभी ये देखिए, ये जो पेरीमीटर होता है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। पेरीमीटर अभी आपको पता है सर्कल का 2 पाई आर होता है, तो आप बोल देंगे इसका पाई आर होता है, तो नहीं, गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा? इधर देखिए, आपको पता है सर्कल का 2 पाई आर होता है, तो यहां से यहां तक ये क्या है? सर्कल का हाफ है, ये ब्लू कलर वाला। तो यहां से यहां तक का लेंथ कितना हो जाएगा? पाई आर हो जाएगा, सर्कल का आधा। वो 2 पाई आर होता है, तो ये पाई आर होता है।
और पेरीमीटर का मतलब क्या होता है? पेरीमीटर का मतलब होता है सम ऑफ ऑल बाउंड्रीज, ये होता है पेरीमीटर का मतलब। तो आपने क्या किया, यहां से यहां तक का तो पाई आर हो गया, लेकिन बाउंड्री में तो ये भी है, ये ब्लू वाला पार्ट नीचे का, तो ये भी आएगा। तो ये क्या है? डायमीटर है, मतलब 2r है। हाँ, साहिल ने सही लिखा। तो हम लोग इसको या तो पाई आर प्लस 2r बोल सकते हैं, नहीं तो पाई, अगर r कॉमन ले लिए तो पाई प्लस 2 ऐसा भी लिख सकते हैं इसको, और नहीं तो पाई आर प्लस डी। ये 2r को क्या बोलते हैं? दैट इज नथिंग बट डी। तो ये हो गया हमारा पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये हमेशा 2r ऐड करना पड़ता है जब पेरीमीटर पूछेंगे तो। नेक्स्ट नेक्स्ट आता है क्वाड्रेंट। आप लोग बोलते हैं ना मराठी में कि एक चतकोर भाकरी दीजिए हमें, एक चतकोर भाकरी चाहिए रहता है किसी को, तो इस तरह से जो देते हैं वो हो गया क्वाड्रेंट। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, तो एरिया ऑफ एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या होता है? तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट इज, आपको देखो ये हाफ पाई आर स्क्वायर होगा, तो ये कितना हो जाएगा? 1/4 ऑफ सर्कल, 1/4 ऑफ सर्कल। और सर्कल का क्या होता है? एरिया पाई आर स्क्वायर। एकदम सर, एरिया में तो एकदम सिंपल है। नाउ कमिंग टू पेरीमीटर अगेन। पेरीमीटर ऑफ क्वाड्रेंट। अभी चलिए इधर देखिए, तो यहां से यहां तो ये बाउंड्री लाइन है एक, तो ये तो क्या हो जाएगा? सर्कल का 1/4 होगा, तो 2 पाई आर डिवाइडेड बाय 4, 2 पाई आर डिवाइडेड बाय 4 मतलब हो जाएगा पाई आर बाय 2। और ये रेडियस है तो ये आर हो जाएगा, और ये भी रेडियस है तो ये भी आर हो जाएगा, तो आर प्लस आर इज 2r। तो ये हो जाएगा पाई आर बाई 2 प्लस 2r। अगर r कॉमन ले लोगे आप तो पाई बाई 2 प्लस 2। चलो अभी ये बताओ, सबको समझ में आ गया ये दो फॉर्मूले? प्लीज चैट इन दी बॉक्स, चैट बॉक्स, एवरीवन। यस, हाँ, कोमल सिंह, हाँ, ओके, ठीक है। अगर समझ में आ गया तो प्लीज राइट इट डाउन, फिगर भी बनाते जाना, फिगर बहुत इंपॉर्टेंट होता है इसमें। चलिए प्लीज राइट डाउन दिस। राधे राधे, हे भगवंता। फैन चला लेता हूँ मैं। राधे राधे राधे। चलो लिख लिया सब लोगों ने?
किसी को डाउट नहीं है, लिख भी लिया है, ठीक है। तो चलो मैं रब कर रहा हूँ इसको। हाँ, एक बार सिग्नल दे दो, अगर किसी ने नहीं लिखा है चैट बॉक्स में डाल दीजिए। 1 2 3, आई एम गोइंग टू रब इट नाउ। ओके, so now we'll move to the next topic. तो हम लोगों ने देखा पेरीमीटर ऑफ क्वाड्रेंट, पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल एंड पेरीमीटर ऑफ सर्कल, और तीनों का एरिया भी देखा, ठीक है। चलिए अभी हम लोग क्या करेंगे, वेट, अभी आप लोगों को कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, एक जो ये चीज होता है कॉन्सेंट्रिक तो इस कॉन्सेंट्रिक सर्कल किसको बोलते हैं, सर्कल्स विथ सेम सेंटर but different radii. सर्कल विथ सेम सेंटर बट डिफरेंट रेडियाई, इसको हम लोग बोलते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल, ठीक है। चलो लेट अस टेक सम एग्जांपल, विल सी दिस इन द फिगर। सिद्धिराज घाड़गे ज्वाइन, ओके। तो देखो ये दोनों कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स है, बराबर। तो इनके बीच का जो एरिया रहेगा, मैं थोड़ा कलर चेंज कर, इनके बीच का जो एरिया रहेगा, ये वाला एरिया, ये निकालना है। तो दोनों सर्कल के बीच है ये, ठीक है। तो इफ वी हैव टू फाइंड दिस, हाउ टू गो अहेड विद दिस, ओके। तो आपको पता है ये सेंटर है, ये छोटे वाले सर्कल का रेडियस स्मॉल आर, इफ वी टेक द बिगर सर्कल्स रेडियस दैट इज कैपिटल आर। तो आपको पता है बड़ा वाला सर्कल में से अगर छोटा वाला सर्कल हटा दिए, आप घर पे आज चपाती खाते समय ऐसा करना, बीच में से कैसा है ना, उसको ऐसा एक 4 फोल्ड कर लेना और बीच में से निकालना, तो ऐसा बीच में रिंग बनेगा ना, तो वो रिंग क्या होगा, एरिया बिटवीन कॉन्सेंट्रिक सर्कल होगा। तो बड़े वाले सर्कल में से छोटे वाले सर्कल को हटा देंगे तो हमारा बन जाएगा एरिया बिटवीन कॉन्सेंट्रिक सर्कल। तो क्या हो गया, एरिया बिटवीन कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, ठीक है। और इसी चीज को हम लोग बोलते हैं एरिया ऑफ रिंग भी बोलते हैं। तो आपको पता है एरिया ऑफ, ये सब याद रखने वाली चीज नहीं है, बस समझ लोगे तो एकदम आसान है। एरिया ऑफ बिग सर्कल माइनस एरिया ऑफ स्मॉल सर्कल। तो बड़े वाले सर्कल का एरिया के लिए क्या करेंगे, बड़ा वाला रेडियस पाई कैपिटल आर स्क्वायर, छोटे वाले के लिए पाई स्मॉल आर स्क्वायर। पाई को कॉमन ले लेंगे आप, तो ऐसा भी लिख सकते हो उसको। और अभी देखो यहाँ पे आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर है कैपिटल में, तो ए प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाए, इसको पाई इंटू आर प्लस आर और आर माइनस आर, इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा एरिया बिटवीन कॉन्सेंट्रिक सर्कल। चलिए इसको लिख लीजिए जल्दी से, एवरीबॉडी प्लीज राइट दिस।
फिगर बनाते जाना, डोंट स्किप द फिगर्स। बिना फिगर का ये चैप्टर कुछ भी यूज नहीं है। ज्योमेट्री हो गया, मेंसुरेशन हो गया, एरिया रिलेटेड टू सर्कल, फिगर का ही खेल रहता है। फिगर समझ में आ गया, उसके अनुसार फॉर्मूले बनाने रहते हैं। फॉर्मूले याद करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको बस सर्कल का एरिया पता है तो बाकी सब कुछ। सर्कल का एरिया याद रखना है, सर्कल का सर्कमफेरेंस याद रखना है। अगर इफ यू रिमेंबर दीज टू थिंग्स देन यू कैन रिमेंबर ऑल द फॉर्मूलाज वेरी इजीली, वेरी इजीली। उसमें थोड़े थोड़े चेंजेस होते रहते हैं और उसको कंसेप्चुअली समझना रहता है। Okay, so everybody has written this. So now we'll move ahead. Okay. Yeah. Okay. Thank you so much. So we'll move now. So I'm rubbing this first. Okay. तो ये हो गया एरिया बिटवीन कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। ठीक है, अभी एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसकी एक दो क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या है? पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल, perimeter of semicircle is 108 centimeter. Find its diameter. चलो डायमीटर निकालना है, ट्राई कीजिए सब लोग। जिसका आंसर आ जाता है प्लीज राइट इन द चैट बॉक्स। पेरीमीटर दिया है सेमी सर्कल का 108 सेंटीमीटर एंड वी हैव टू फाइंड आउट द डायमीटर ऑफ दिस सेमी सर्कल। प्लीज एवरीबॉडी ट्राई एंड लेट मी नो द आंसर इन द चैट बॉक्स। प्लीज स्टार्ट। आंसर कितना है? या जिसका आंसर आया लिखिए। आंसर लिखो।
हेलो एनीबॉडी देयर? या आई एम हियर। सॉरी, थोड़ा इंटरनेट का प्रॉब्लम था। चलो आंसर बताओ तो इसका आंसर आया किसी का? 42 सेंटीमीटर। आर 44 है। नहीं नहीं पार्थ, गलत है आपका। 42 आएगा। तो क्या बोल रहा है? पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल इज गिवन। तो ये दिया हुआ है उन्होंने। तो ये क्या होता है? पाई आर प्लस 2r। मैंने फिगर बनाया था ऐसा। इसका होता है पाई आर और नीचे 2r इक्वल्स टू 108 दिया हुआ है। तो r को कॉमन ले लेंगे, पाई बाई 2, तो 22/7 प्लस 2। सॉरी, तो ये कितना हो जाएगा? r। यस। तो 7 2 जा 14, 22 प्लस 14 इज हाउ मच? 36। ये 1 जा, ये 3 जा, r इक्वल्स टू 21। r 21 है तो डायमीटर कितना हो जाएगा? 42। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है? इस तरह से यूज करना है। फॉर्मूला ये लगाना था, 2 पाई आर नहीं लगाना था और सिर्फ पाई आर भी नहीं लगाना था। चलो और एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आप लोगों को। सॉरी, a wire loop from a circle of the shape. देखो, चलो ये क्वेश्चन रब कर रहा हूं मैं अभी। क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 क्या है? A wire is looped in the form of a circle. A wire in the form of a circle of radius equals to 28 centimeter. Radius 28 है। It is bent into a square. Then it is bent into a square. सर्कल में से स्क्वायर बना दिया, ठीक है ना? डिटरमाइन द लेंथ ऑफ साइड। फाइंड साइड ऑफ न्यू स्क्वायर फॉर्म। चलिए ट्राई कीजिए इसको। एवरीबॉडी प्लीज ट्राई दिस। रेडियस दिया हुआ है, रेडियस कितना है? 24 और 20। चलो इसको ट्राई कीजिए सॉल्व करने का सब लोग। 44। अच्छा, आंसर कितना है इसका? हाँ जी सही है आपका। पार्थ योर राइट। अदर्स प्लीज। देखो सर्कल में से क्या बना दिया उन लोगों ने? एक सर्कल था, इसमें से बना दिया स्क्वायर। तो जब इसमें से इसको स्क्वायर बना दिया, दोनों का पेरीमीटर तो सेम रहेगा ना? तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू पेरीमीटर ऑफ सर्कल।
तो पेरीमीटर स्क्वायर कितना होता है 4 इंटू ए साइड, ये 2 पाई आर, आर कितना दिया हुआ है 28, 7 1 जा 4 जा 4 4, तो ए इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 44, आंसर आ गया। इज इट क्लियर टू एवरीवन? या यस, perimeter 176 है, yeah that is right. I don't know whether it is 776, या 176 पेरीमीटर है, उसको 4 से डिवाइड कर देंगे क्योंकि जो पेरीमीटर है सर्कल का उसी में से हम लोगों ने बनाया है स्क्वायर, दैट्स व्हाई द पेरीमीटर ऑफ सर्कल एंड पेरीमीटर स्क्वायर विल बी सेम, और उसमें से हम लोगों को साइड ऑफ स्क्वायर मिल जाएगा। ठीक है, सो एवरीबॉडी इज गेटिंग हाउ टू डू दिस क्वेश्चंस? Please write whether you are understanding or not. Yes, no, whatever. All the students, सब लोग लिखिए। अरे सब लोग लिखो, सब लोग मतलब सब लोग। सिद्धिराज, साहिल, सब लोग के लिए ये क्वेश्चन, प्लीज रिस्पॉन्ड किया कीजिए आप लोग। आप रिस्पॉन्ड नहीं करोगे देन इट विल बिकम वेरी डिफिकल्ट फॉर मी। बिना नाम जब बोला गया तो सब लोग फटाफट यस 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 लिखने का, ना 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 जो भी है लिखने का। ठीक है, चलो और एक क्वेश्चन करेंगे डिस्कस अभी। क्वेश्चन 3, ठीक है, टेक्स्ट एनसीईआरटी का ये, द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग, द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग, चलिए मैं लिख रहा हूं, आप लोग क्वेश्चन भी लिखते जाइएगा। द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग, द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अ सर्कुलर फील्ड the cost of fencing a circular field at the rate of rupee 24 per meter is rupees 5280. Find the field is to be plotted. The field is to be plotted at the rate of rupee 0.50 per meter square. Find cost of plowing the field. चलिए इसको कीजिए सब लोग। पहले अच्छे से क्वेश्चन को पढ़िए, ट्राई टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन एंड देन सॉल्व इट।
जिसका आंसर है प्लीज राइट इन द चैट बॉक्स। वन 192.5 यस सही है। पाई का वैल्यू 22/7 लेना सब लोग, अगर अभी तक शुरू नहीं किया। पाई इक्वल्स टू 22/7। तो द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अ सर्कुलर फील्ड एट द रेट ऑफ दिस इज दिस। ओके, तो फेंसिंग करने का, तो इधर देखो, तो हमको पता है फेंसिंग का कॉस्ट। तो कॉस्ट क्या आएगा फेंसिंग का? रेट इंटू पेरीमीटर। तो कॉस्ट इक्वल्स टू कितना होता है? कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इक्वल्स टू रेट ऑफ फेंसिंग इंटू पेरीमीटर। जैसे मैं सिंपल सा एग्जांपल बताता हूँ आप लोग को। सपोज आपने पोटैटोज लाए 100 रुपीज में लाए, नहीं, और 10 रुपी 5 पर केजी कॉस्ट था। तो आपने कितने केजी लाए? हाउ मेनी केजी यू ब्रॉट? तो कॉस्ट इक्वल्स टू रेट इंटू नंबर ऑफ केजीज। तो इसमें कितना आ जाएगा? 20 केजी लाया है। तो उसी तरह ये चीज अप्लाई होता है। तो कॉस्ट यहाँ पे लिख देंगे, कितना है? 5280। रेट कितना है? 24 इक्वल्स टू पेरीमीटर। तो 12 2 जा 4 8, फिर से 4 0, फिर 2 2 2 0 हो जाएगा। तो पेरीमीटर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 220। ठीक है, ये पेरीमीटर आ गया। हमको क्या निकालना? कॉस्ट ऑफ फ्लोइंग द फील्ड निकालना। तो पेरीमीटर आ गया, तो हम लोग इसको 2πr लिख सकते हैं। 2 इंटू 22/7 इंटू r इक्वल्स टू 220। अभी ये 22 10 जा आ जाएगा, 2 1 जा 5 जा। तो r आ गया कितना हमारे पास? 7 शिफ्ट होगा तो 35 आ गया। r 35 आ गया। अभी हमको निकालना क्या है? कॉस्ट निकालना है। चलो थोड़ा मैं कलर चेंज करके ट्राई करता हूँ इसमें। तो सबसे पहले एरिया निकालना पड़ेगा। एरिया कितना होगा? पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर 7 5 जा 35 5 जा कितना होता है? 35 5 जा नहीं तो 22 इंटू 5 कितना होता है? 22 इंटू 5 हो जाएगा 110 इंटू 35 35 तो ये आ जाएगा 3850 3535 इतना आएगा। तो ये एरिया आ गया।
तो कॉस्ट कैसे निकालेंगे? कॉस्ट इतना एरिया है तो 3850 कितना ₹50 है, मतलब 1/2 हो जाएगा, पैसे दिया हुआ। तो ये कितना हो जाएगा? 1925, इतना आंसर है। किसी का 1925 पॉइंट समथिंग आ रहा है क्योंकि पाई का वैल्यू उन्होंने 3.14 यूज किया होगा, उसके कारण से वैल्यू थोड़े चेंज हो सकते हैं, अदरवाइज राइट है। तो ये आंसर हो गया। सबको समझा गया क्वेश्चन का आंसर? कोमल ने किया है, बाकी लोग रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे भैया। कोमल आपका सही है, शायद से आपने पाई का वैल्यू 3.14 यूज किया होगा, इसके कारण से थोड़ा अलग आ रहा आंसर, अदरवाइज इट इज राइट। बाकी लोगों को आया समझ में? लिखो लिखो यार, लिखो। चैट बॉक्स में लिखिए। यस, आधे लोग तो गायब हो जाते हैं यार बीच में, बाकी लोगों को समझ में। ठीक है, इसमें मजा नहीं। ठीक है, चलो अभी आप लोग अरे बाकी लोग रिस्पॉन्ड किया करो यार, तुम लोग रिस्पॉन्ड नहीं, मेरे को मजा नहीं आता ऐसे में। तुम लोग यस नो कुछ तो बोलो। मैंने तो माइक भी अनम्यूट कर दिया है, अगर आपको बोलना है म्यूट अनम्यूट करके बोल भी सकते हैं, मेरे को कुछ प्रॉब्लम नहीं है। फटाफट रिप्लाई करने का, ऐसे ठंडा मत पड़े रहो। आप लोग अनम्यूट करके मैंने सबको अनम्यूट करके रखा है मेरे साइड। आपको बोलना है तो आप बोल भी सकते हो, आई हैव नो इशू विथ, मतलब आप बोलेंगे तो कुछ प्रॉब्लम आएगा मुझे। रिस्पॉन्ड किया करो चैट बॉक्स में, एटलीस्ट बी एक्टिव। सोया मत करो क्लास में, मुझे लगता है आधे लोग तो सो जा रहे हैं। बी एक्टिव इन द क्लास एवरीवन, आई रिक्वेस्ट दिस, बिकॉज मुझे ऐसा मजा नहीं आता है, कुछ आप लोग बोल ही नहीं रहे, मैं बोला जा रहा हूँ। वन में ट्रैफिक नहीं चलेगा, यू बोथ साइड, बोथ द टीचर शुड स्पीक, स्टूडेंट शुड स्पीक। चैट बॉक्स में नहीं तो करो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं अभी हम लोग। चलो अभी नेक्स्ट कंसेप्ट जो पढ़ने वाले हैं उसको बोलते हैं रोटेशन, ठीक है ना? इसी में है ना? चलो अभी देखिए, प्लीज ध्यान से देखिए सब लोग। ये हमारा एक सर्कल है, सर्कुलर व्हील है। कार का चक्का होता है, साइकिल की चक्के होते हैं, बुलेट कार्ट का चक्का होता है, सबका चक्का होता है, ठीक है? अभी मान लो ये ट्रैक्स है, ठीक है? अभी इसमें चलने के लिए, इसमें जब ये रोटेट करेगा, बराबर, इसमें जब रोटेट करेगा ये, तो ये ऐसा रोटेट करते 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 जब यहाँ पे दोबारा पहुंचेगा, मान लो एक रोटेशन कंप्लीट होता है, ठीक है? तो उसमें क्या होगा, एक रोटेशन में यहां से शुरू किया था, फिर से वही ए पॉइंट में था, सपोज ये ए पॉइंट है, ये ए पॉइंट है सर्कल का, फिर से जब एक रोटेशन कंप्लीट होगा तो यहाँ पे फिर से ए पॉइंट आएगा। तो ये जो डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है यहां से, ये डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है, ये क्या होगा, ये सरकमफेरेंस ही होगा ना सर्कल का। आप लोग बोल सकते हो अनम्यूट करके अगर समझ में नहीं आ रहा है तो। दिस विल बी नथिंग बट सरकमफेरेंस। मतलब क्या, एक रोटेशन में एक सरकमफेरेंस हो मूव करेगा व्हील, दो रोटेशन में 2 इंटू सरकमफेरेंस करेगा।
10 रोटेशन में 10 इंटू सर्कमफेरेंस करेगा, करेक्ट। मतलब क्या हुआ, ये एक रोटेशन में कितना जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है ना, वो एक सर्कमफेरेंस के बराबर है। 2 रोटेशन में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, 2 इंटू सर्कमफेरेंस हो जाएगा। ठीक, तो चलो एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं, आप लोगों को चैट बॉक्स में आंसर देना है, ठीक है। एक सर्कल है जिसका सर्कमफेरेंस है 20 सेंटीमीटर है, ठीक है, और ये तो 10 रोटेशन में ये जो सर्कमफेरेंस है व्हील का जो सर्कुलर है, 10 रोटेशन, रोटेशन गलत है इसमें, 10 रोटेशन में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो व्हील, चैट बॉक्स में लिखिए जल्दी से, सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए कोई तो, पार्थ, विशाल, साहिल, सिद्धिराज, राघव, कोमल, बताइए। सो जाते कि क्या करते यार, ये तो कुछ समझ में नहीं आता। क्या यार ये, अरे यार आवाज सुनाई दे रही है अभी? यस ठीक है। तो देखो आरिफ, बच्चों, आंसर मोस्ट ऑफ यू आर राइट। ये 20 है, यहाँ से यहाँ एक रोटेशन में 20 किया, फिर दूसरे में फिर से 20 किया, फिर 20 किया, तो 10 टाइम्स 10 रोटेशन कर रहा है, तो 20 इंटू 10 200, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसका फॉर्मूला बना देंगे हम लोग, एकदम सिंपल सा है फॉर्मूला। तो क्या है फॉर्मूला, डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय व्हील इक्वल्स टू क्या होगा, नंबर ऑफ रोटेशन, नहीं तो रिवॉल्यूशन, ठीक है ना, जो भी क्वेश्चन में रहेगा, नंबर ऑफ रोटेशन इनटू सरकमफेरेंस। ये फॉर्मूला कुछ नहीं है, अगर थोड़ा सा सोचेंगे तो ये फॉर्मूला बनता है। तो चलिए प्लीज राइट डाउन दिस फॉर्मूला। आई होप दिस फॉर्मूला इज क्लियर टू एवरीवन। So now we'll solve one question like this. ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे।
चलिए, तो यहाँ पे तीन चीजें है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड, नंबर ऑफ रोटेशन और सरकमफेरेंस। ठीक है, एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग। एक्सटेंड, ठीक है, एक क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना। इफ रेडियस ऑफ व्हील is radius of a wheel is 14 centimeter, ठीक है, then how much distance will be traveled in 20 revolution। चलिए सॉल्व कीजिए तो इसको सब लोग। रेडियस ऑफ व्हील इज 14 सेंटीमीटर, देन हाउ मच डिस्टेंस विल बी ट्रेवल्ड बाय व्हील इन 20 रिवॉल्यूशन। चलो 16, अच्छा ठीक है, आंसर एक ने भेज दिया, और बाकी लोग का प्लीज बी एक्टिव। तो पहले सरकमफेरेंस निकालेंगे, फिर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सरकमफेरेंस कितना हो जाएगा, 2 पाई आर, $44, 88। तो डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन 20 इंटू 88, 1760, क्या है, सेंटीमीटर। चलो बाकी लोग भी करो यार, तुम लोग बहुत स्लो करते हैं। सबको समझ में आ गया क्या? स्क्रॉल करने की जरूरत, पता नहीं कभी कभी क्या होता है इसको। कोमल का आ गया बराबर। अरे राघव पूरा आंसर लिखो यार, 88 इंटू 22 लिख दिया। चलो ठीक है, ये समझ में आ गया। एक लास्ट क्वेश्चन करेंगे अभी हम लोग, फिर मैंने सॉल्व भी कर दिया इसको, अगर नहीं दिख रहा होगा तो यू कैन सी इट नाउ। क्लियर? ओके, so now we will be going for the next question, which will be similar to this. चलो, if distance traveled by a car is 220 मीटर, ठीक है ना, in 10 revolution, then find radius of wheel of car। चलिए इसको सॉल्व कीजिए। आंसर बताओ सॉल्व करके। सब लोग जिनका जिनका आंसर आता है बताया करना, जिनको नहीं समझ में आता प्लीज रिस्पॉन्ड करो यार, इतने ठंडे रहोगे कैसे चलेगा। किसी का आंसर आया?
22 राघव, हाँ तो आंसर लिखिए तो कितना आ जाएगा, डिस्टेंस इक्वल्स टू n इंटू सर्कमफेरेंस। तो डिस्टेंस कितना है 220, n कितना है 10, 3.5 कोमल का सही आंसर है। वही मैं सोचू 2 पाई r। हाँ अरे तो गलत कैसे निकालते हैं, 22 कैंसिल हो जाएगा, 10 बचेगा, 10 कैंसिल हो जाएगा, यस। तो r इक्वल्स टू 7/2, 3.5। ठीक है चलो, ठीक है हम लोग आगे कल और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो थोड़ा याद रखिएगा, रिवाइज करके आइएगा, ये सब क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, ठीक है ना। चलो थैंक यू सो मच। सो नाउ वी विल एंड दिस क्लास, यू कैन ज्वाइन योर नेक्स्ट क्लास। चलो बाय, गुड इवनिंग एवरीवन। थैंक यू।